Because your third वाला question है, this is a type. Okay, this third question is a type important for the MCQs and the boards. So the question says, you can see my notation on the board, right? देखो एक बार क्रॉस चेक करो जल्दी से. Yeah. Cool. So tan a plus b is equal to root 3. It is given, and another thing that is given is tan a minus b. Tan a minus b is equal to 1 over root 3. ये आपको दे रखा है बच्चों. You have to find a and b. आपको a और b निकालना है. So tan a plus b. This is the easiest question in this exercise. I've told you if you don't remember the table, you should learn it. Otherwise, practice कर करके questions कर करके आपको आ जाएगा. So if you observe over here the 10 table, the value of 1030 is what? 1 upon root 3. तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉरी 1060 की वैल्यू क्या होती है वैसे रूट 3. तो आप यहाँ पे रूट 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1060 लिख सकते हैं, बिकॉज 1060 की वैल्यू इज रूट 3. नाउ वी डोंट कैंसिल इट लाइक दैट, बट आप सोच सकते हैं कि आपने कैंसिल कर लिया. हम कैंसिल करके दिखाते नहीं है. दैट इम्प्लाइज दैट a plus b is equal to 60 degree. And over here similarly we can say that tan a minus b is equal to 1 upon root 3. 1 upon root 3 is 1030. 1030. So tan will cancel out. In a way we can say that. Now this is first, this is second. You know that you have done elimination method. You can add them, adding 1 and 2, right? You can add them like that. So a plus b is equal to 60. A minus b, बच्चों आपने elimination method पढ़ रखा है, pair of linear equation, two variables chapter. Now when you add them, this will cancel out. A plus a will be 2a. 60 plus 30 is 90. So a will be half of 90. That will be 45 degrees. And if a is 45, you can plug this value in any of the equation, either this or this. The both will fetch the same answer. So a plus b is equal to 60, बच्चों. A plus b is equal to 60. So a is 45. Then b must be what? B must be 60 minus 45. That is 15 degrees. So this is your answer. I hope that is clear what we have done. हमारे पास क्वेश्चन था कि tan a plus b is root 3 and tan a minus b is 1 upon root 3. We just plug in the value at this 1060. 10 है तो 10 वाले में ही देखना है root 3 कहाँ पे है, 1060. Similarly, tan a minus b 1 over root 3 is 1030. Now 10 cancel out 10, a plus b is 60. 10 cancel out 10, a minus b is 30. Using the elimination method, we got that twice a is equal to 90, so a will be 45. And then plugging b in either in this equation or this equation, I plugged it in this equation right over here. First वाली equation मैंने plug in किया and got the answer. Understood? Yes. बोलो जल्दी से, फिर आपको extra question देते हैं कैसा. यस सर। चलो Yes, class sir. एक बोर्ड का क्वेश्चन बनाओ. फाइंड फाइंड एक्यूट एंगल्स. इसी टाइप में कर रहे हैं अभी बच्चे, ठीक है. इस टाइप के तीन चार है मेरे पास, मैं करा दूँ. फाइंड एक्यूट एंगल्स ए एंड बी इफ साइन ए प्लस, जिसको एलिमिनेशन मेथड और टेबल याद हो गया है उसके लिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा. नहीं हुआ है तो देख लेना टेबल. ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0. ठीक है, ऐसा दे रखा है. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन. आपको ए निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट बी. ठीक है, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes. करो इस क्वेश्चन कैन को. यू शो द टेबल? यस, एक सेकंड. थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं. करो बच्चे, इसको ट्राई करो. फिर हो गया।
हाँ भाई, चैट बॉक्स में यू कैन प्लग इन द आंसर्स। शाबाश बच्चों, करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट है, शाबाश। कीप इट अप, यू आर मेकिंग योर संडे काउंट, दीज थिंग्स विल 30 मैटर। and 50. ओके, तो कैसे करना है हमें, देखो, साइन ए प्लस बी, साइन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2। सो रूट 3/2 की वैल्यू आपको साइन पे देखनी है, द वैल्यू एट साइन रूट 3/2 is 60, right? So sine 60. Now sine will remove the sine, so 2 is equal to 60 degree. That is our first equation. The second one, if we go for the second one, good. The second one, that is cos a plus 4b is equal to 0. 0 कहाँ पे होता है बच्चों, 90 डिग्री पे होता है, so cos, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, इसको नीचे ले आते हैं, एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, राइट, सब्ट्रैक्शन। So 4b minus 2b cancel out. Twice of a is equal to 30. So a must be half of 30, that is 15. And if a is 15, you can plug in either of the equation. I'm plugging in the first equation. So that will be a plus sorry, my bad. A is what? A is 15 plus 2. Twice of b is equal to 60. So 2b is equal to 60 minus 60 minus what? 60 minus 15, that is 45 degrees. अरे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? डेसिमल में आ रहा है आंसर, डेसिमल में आ रहा है, हम बच्चों को तो अलग अलग आ रहा था, मैंने गड़बड़ किया था क्या? जरा कहीं गड़बड़ कर दी क्या? साइन ए प्लस बी 3/2 सही है, साइन 60 ठीक है, ए प्लस 2 बी इक्वल टू 60 ठीक है, उसके बाद कॉस ए प्लस 4 इक्वल टू 0, कॉस 90 ठीक है, 90 में 60 30 ठीक है, ओह ओह, ट्वाइस ऑफ बी होगा ना, माय बैड, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सब्स्टिट्यूट होना था, गलत कर दिया, कोई नहीं, चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, जब कैंसिल आउट होगा तो आपका ए कैंसिल आउट होना था, यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड गलत कर दिया, अरे लेकिन तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 2 भी आपका 60 आएगा, और ए प्लस 4 भी आपका 90 आएगा, राइट। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये ए कैंसिल आउट होगा, राइट, और -2b इक्वल टू -30, तो b विल बी 15, अब सही आएगा, राइट। सो b को आप प्लग इन कर दें यहाँ पे, a प्लस ट्वाइस इंटू 15 इक्वल टू 60, सो a प्लस 30 इक्वल टू 60, सो ये कितना आ जाएगा बच्चों, a विल बी 30, सो ये आंसर आना था इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसके होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड का, ट्राई करके मेरे को भेजना सॉल्यूशन। कोई बच्चा पूछा तो होमवर्क का क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करो, जो भी डाउट वाला क्वेश्चन है मैं करा देता हूँ। ये दे रखा है क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क है आपका, ये करना है आपको आज, और मेरे को भेजना है बाद में। कॉट ए प्लस बी की वैल्यू है 1/√3, स्टैंडर्ड का है, बना लेना, आ सकता है एग्जाम में। सेक ए प्लस सी का है वैल्यू 2, तो आपको ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, और सी भी निकालना है, ठीक है, तीनों एक्यूट एंगल्स हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके दिखाना, ठीक है, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप लेटर ऑन, अभी मैं आगे चल रहा हूँ बच्चे। चलो, एनसीईआरटी पे आएंगे, अभी एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करके एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। चलो मूव ऑन, यस बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है, रोम्बस, रोम्बस of side 14 centimeter has two angles, has two angles of 60 degree each, 60 degree each. Find find the lengths, wait, लेंस, अभी हम सेकेंड एक्सरसाइज पे बेस्ड कर रहे हैं, मतलब जिसमें एंगल्स होते हैं, उसकी बेस, फाइंड द लेंस ऑफ द, आइडेंटिटीज वाला नहीं कर रहे हैं हम, आइडेंटिटीज वाले के लिए एक और सेशन लगेगा, ठीक है, अभी हम स्पेसिफिक एंगल्स वाली एक्सरसाइज पे बेस कर। सो दिस इज द क्वेश्चन, अगेन गिविंग यू 2 minutes, ट्राई इट आउट, करो खुद से।
हम्म चलो तो देखो, गिव यू द टाइम। किसी का है आंसर तो चैट बॉक्स में प्लग इन कर दें, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू दिस सॉल्यूशन, हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, स्टैंडर्ड का है बच्चों। ठीक है, देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले बिफोर दिस क्वेश्चन यू शुड नो सर्टेन थिंग्स अबाउट रोम्बस, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 degree. Of class 9th you have studied this, bisect each other at 90 degree. That is the first thing that you should know. Also, diagonals of rhombus bisect opposite angles, bisect opposite angles. ये भी आपको पता होना चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. What is the question first of all? A rhombus of side 14 centimeter has two angles. सबसे पहले एक rhombus बनाते हैं बच्चों. Let's make a so let's make a rhombus over here. So there is a rhombus. इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि visibility. So, oh, so there is a rhombus बच्चों जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको? The side is 14 centimeter, right? So 14, 14, 14, and has two angles of 60 degree each, right? So it's a parallelogram, तो कोई भी दो एंगल अपोजिट वाले ले लो जो बराबर होंगे, राइट? साथ वाले तो 60 60 नहीं हो सकते, राइट? अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो ऐसे ही होगा केस. और अगर कि ऐसा केस है बच्चे, तो अगर एक डायगोनल मैं बना दूं यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ द डायगोनल्स, जैसे दिस इज वन डायगोनल एंड दिस इज द अदर डायगोनल, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, मतलब ये जो लेंथ है, जैसे ए बी सी डी एक रोम्बस है, सो इट इज बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट एसी लेंथ, डायगोनल एक एसी है और एक बीडी, दोनों की डायगोनल लेंथ. डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस में, ठीक है, याद रहे. रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. क्लास 9 क्वाड्रेटिकल चैप्टर. ओके नाउ, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये सारे 90 होते हैं. और बाइसेक्ट का मतलब ये इसके बराबर होगा बच्चों, और ये वाला पार्ट इसके बराबर, इसका मतलब ये होता है. ओके, एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स आल्सो, दैट मींस इफ दिस गाय इज 60 देन दिस मस्ट बी 30, राइट? ये भी 30 होगा, ये सारा 30 होगा. अब ध्यान से चलो मान लेते हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. अब ध्यान से इस वाले ट्राइंगल को मैं उठाता हूँ, देखो ध्यान से, मैंने इस वाले ट्राइंगल को यहाँ पे एनलार्ज करके आपको उठा के दिखा. ठीक है, तो क्या हम करने वाले हैं, टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ओ बी सी, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. अच्छा बताओ, ये 30 है, 90 है, तो ये कितना होगा? बोलो बोलो 60. बोलो. 60 होगा, थ्री राइट? सिक्सटी और आपको बच्चे 17 पता है. अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? पीओसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? सर द साइड इज 14. 14, 14. दिस इज 14. द हाइपोटेन्यूज इज 14 क्योंकि 90 के सामने वाला है. अब अगर आपको ये पता चल जाए और ये पता चल जाए, देखो अगर ये पता चल जाए तो इसका ट्वाइस करके ये वाला डायगोनल आ जाएगा, और अगर ये पता चल जाए तो ट्वाइस करके इसका वाला डायगोनल आ जाएगा. बच्चों क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं पढ़ाया मैंने कि अगर आपको ऐसे ट्राइंगल है, if there is a triangle and you know the hypotenuse that is 14 and this is 90, let's say this is 30 and this is 60, can't you figure out these two sides? Yes, we can using trigonometric ratios. How come? देखो ध्यान से कैसे कैसे निकलेगा. देखो सी, यहाँ पे क्या है ओ, यहाँ पे डी, मैंने इसको सीधा कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से दिखे, नहीं तो वैसे भी समझ सकते. तो अगर आपको ये निकालना है तो आप देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, राइट? ये अगर आपको निकालना है तो मान लो आपको ये निकालना है तो cos 30 लगा लो. cos 30 लगाओगे तो क्या होगा? बी अपॉन एच होता है फॉर्मूला, बी होगा cos 30 के लिए. बी क्या है आपके पास? बी आपको निकालना है. एच का आपके पास 14 है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? टेबल लो निकाल देते हैं टेबल. cos 30 की वैल्यू देखो क्या है? cos 30 की वैल्यू √3/2, राइट? √3/2. इस टेबल को यहाँ से हटाते हैं, √3/2. ओके, सो √3/2 की वैल्यू क्या है आपके पास? OD/14. सो 2 से 1 कैंसिल, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? 7√3. अगर ओडी आपका 7√3 है प्यारे बच्चों, ओडी 7√3, तो उसका ट्वाइस करोगे तो बीडी कितना आ जाएगा? बीडी विल बी ट्वाइस ऑफ 7√3, दैट विल बी व्हाट? 14√3, isn't it? तो एक डायगोनल आ गया. दूसरा डायगोनल निकालना है. ये आपके पास अब 7√3 है, राइट? आपने निकाल दिया. कितना है ये आपके पास? ये आपके पास 7√3. नाउ यू हैव टू फिगर आउट दिस. साइन लगा लो, साइन 30 लगा लो भाई, कॉस कुछ भी लगा लो, बस ये निकाल दो, पी अपॉन एच.
सो P अपॉन एच मतलब अगर साइन 30 के लिए P होगा OC और H होगा 14. साइन 30 की वैल्यू 1/2. वी डोंट नीड द टेबल नाउ, वी नो दिस वैल्यूज. 2 times 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, OC विल बी 7. तो अगर बच्चे OC 7 आया है मतलब ये वाला पार्ट 7 आया है, ये वाला पार्ट 7 आया है, तो पूरा पार्ट 14 होगा, डबल हो जाएगा. तो EC विल बी डबल ऑफ OC, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 7, दैट इज 14. एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है. और अगर इसको ट्रिक से करना है ना, ऐसे कर सकते हो. देखो, अगर आपने ध्यान से देखा, फिर से समझाऊंगा इसको, पहले ट्रिक से देखो कैसे. आपको याद है मैंने बताया था, HLD में भी पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जब मैं बता रहा था कि एक अब्रॉड में कैसे पढ़ा जाता है, 30 60 90 ट्राइंगल होता है बच्चों. 30 60 90 ट्राइंगल जो हमारा ये वाला होता है, ये वाला, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है. अगर MCQ में आ जाए तो तुरंत करके पढ़ सकते हो आप ये वाला क्वेश्चन. देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 के सामने वाला आपको कितना दे रखा है, 14. मतलब 2 जो है, 2 यूनिट इक्विवेलेंट है कितने के, 14 के. तो 1 यूनिट कितने के इक्विवेलेंट होगा, 14/2, दैट इज 7. राइट, मतलब कि आपका ये वाली साइड 1 जो है ये 7 होगी. और ये √3 लिखा हुआ है, √3 मतलब 1 1 इंटू √3, राइट, दैट इज √3. तो आप 7 को √3 से कर दो, 7 √3 मतलब ये वाली साइड 7 √3. क्या वही नहीं आया था हमारा आंसर, वही आया था. मतलब इक्विवेलेंसी वाले कंसेप्ट से आप जल्दी से करके निकल सकते हो, ठीक है. दिस इज हाउ यू मेक डिफरेंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, ठीक है. अगर नहीं आ रहा है, नो नीड टू वरी. हम एक और बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं. इधर आ जाओ, कितने बच्चों को वैसे सामने आ गया, बोलो जरा. से यस सर, जिन बच्चों को सामने आया है क्वेश्चन. हम्म. Yes, sir. Yes. 2, 20 स्टूडेंट्स आर देयर. 2 बच्चों को सामने आया है, बाकी बच्चों को अनम्यूट नहीं करना है सर. सेशन से चले जाओ. तो बोलो भाई, कितनों को सामने आया है और किसी को आया है, बस 2 ही बच्चों को सामने आया है. Yes, sir. हाँ, देखो देखो यस देखो. सर, Yes, मेरे sir. को भी आ- चलो चलो भाई, चलो थोड़े और मजा आएंगे, चलो good. तो माइक देखो वर्क अब नहीं कर रहा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन इस बार मैं रिव्यू करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है. तो देखो, रिव्यू कर देते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो रिव्यू इधर कर. You have like infinite whiteboard. Technology. देखो भाई, a rhombus of side 14 centimeter. There was a rhombus of side. बच्चे आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकते हैं. एक rhombus है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, ठीक है. आप अगर एनसीईआरटी करके खुश हो जा रहे हो तो याद रहे, आप पछताओगे बोर्ड में. ये बोर्ड में 14 सेंटीमीटर है सारी सबकी साइड्स. और इसके जो एंगल्स हैं, डायगोनल्स जो, सॉरी अपोजिट एंगल्स जो हैं, देखो उसने बोला दो एंगल 60 डिग्री. ये मत करके बैठ जाना 60 60. ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैराग्राम इज 180, ठीक है. तो ये 60 है, तो ये अपोजिट वाला ही 60 होगा. अब जब आप इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल्स को और 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं. तो बच्चे ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 30 हो गया. तो ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा वाला ट्राइंगल बन रहा है, 90 30 और यहाँ पे 60 वाला ट्राइंगल. मैंने आपको बताया कि 30 के सामने 1 होता है, यहाँ √3 होता है, यहाँ पे 2 होता है. शॉर्टकट वाले तरीके से पहले बता रहा हूँ आपको. तो 14 जो आपके 2 के इक्विवेलेंट है, 2 के इक्विवेलेंट है 14, तो 1 इक्विवेलेंट होगा 7 के. मतलब ये जो 1 है ये 7 के इक्विवेलेंट है, मतलब कि इसकी वैल्यू 7 है, तो ये 7 आ गया यहाँ पे 60 वाली साइड. ऐसे ही यहाँ पे देखो √3 है. 1 अगर 7 के बराबर है तो √3 कितने के बराबर होगा, 7 इंटू √3, तो 7 √3. तो यहाँ पे ये वाली साइड 7 √3 के बराबर है. और बाइसेक्ट कर रहा है तो 7 √3 दैट इज 14 √3. एक डायगोनल ये होगा, 7 का डबल 14, दूसरा डायगोनल ये होगा. जल्दी से करके आगे बढ़ जाए, ठीक है. चलो, अब अगला एक क्वेश्चन करते हैं. एनसीईआरटी पे आ जाते हैं थोड़ा सा वापस से, औकात पे आ जाते हैं हम लोग, डाटा के. तो देखो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट. फर्स्ट पार्ट इसका करवा दिया था मैंने, सेकंड पार्ट डन, थर्ड पार्ट डन, फोर्थ पार्ट करवा देते हैं. और ये भी करवा दिया. साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 ओवर सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री. ठीक है बच्चों, टेबल याद होना चाहिए. टेबल याद नहीं है तो सामने टेबल रख देते हैं आपके, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है जिसका आप गलत फायदा उठाते हो. अगर सही फायदा उठाया जाए तो देखो कितना ज्ञान हो सकता है. देखो भाई, तो साइन 30 की वैल्यू इज 1/2. तो 1/2 प्लस टेन 45 इज 1/, सो 1045 इज 1, राइट. 10 में देखना है ना, 1045 इज 1 माइनस कोसेक 60 इज व्हाट. अभी तो लग रहा है सर सामने टेबल है कर रहे हो, याद हो जाना चाहिए टेबल, ठीक है.
sec 30 वरना इतना आसान नहीं लगेगा। sec 30 2 over root 3 cos 60 that is 1 by 2 and then cot 45 that is 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक सेकंड, अभी करवाता हूँ बच्चे, ठीक है, टेंशन मत लो, जो आपने भेजा है उनको। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे 2 और रूट 3 का एलसीएम 2 रूट 3। इसके पास 2 है, रूट 3 नहीं है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसके पास दोनों ही नहीं है, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे रूट 3 है, 2 नहीं है, 2 2 4 हो जाएगा। नीचे आओ, फिर से एलसीएम 2 रूट 3। अब इसके पास 2 नहीं है, तो उसको 2 2 4 हो जाएगा। इसके पास रूट 3 नहीं है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 हो जाएगा। इसके पास दोनों ही नहीं है, सो 2 रूट 3। राइट नाउ 2 रूट 3 कैंसिल, सॉल्व विद 2 रूट 3। लेट्स सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर, दैट इज 2 रूट 3 और 1 रूट 3 बन जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4। नीचे आओ, 4 प्लस 3 रूट 3। देखो थोड़ा सा ना मैथ्स में सिमेट्री चलता है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला बनाना है हमें। कैसे रेशनलाइज कर लेना है, बिकॉज स्क्वायर रूट इज देयर, सो लेट्स रेशनलाइज इट। इसको रेशनलाइज कर लो बच्चों। तो ऊपर क्या होगा, 3 रूट 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 रूट 3। रेशनलाइज करना इज इंपॉर्टेंट, उसके बिना कट जाएंगे नंबर। a प्लस बी and this guy is a minus b, so a square that is 4 का square minus 3 root 3 का square, so this guy will be, let's open it up। ऊपर वाला ओपन करना आता होगा, है कैसे ओपन करते हैं, a plus b into c plus d अगर है आपके पास, तो a को c से करेंगे पहले ac, फिर a को d से करेंगे, फिर प्लस ad, प्लस b को c से करेंगे प्लस bc, देन b को d से करेंगे bd, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 रूट 3 को अगर 4 से करेंगे दैट विल बी 12 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, बताओ कितना आता है 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, बोलो। लेक्चर नहीं है, सेशन है, बोलो जल्दी से। 3। 3 आएगा, 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, अच्छा 27. 27। हाउ कम, 27. because 3 into 3 and root 3 into root 3 is 3, so 3 3 3 is 27, right? So that guy will be 27, so 27. Now 4 into 4 will be 16, and then minus minus is plus 12 root 3 again, right? So over 4 का स्क्वायर 16 है, आपने बोला 3 रूट 3 का स्क्वायर that is 3 into 3 root 3 into 3 root 3 is 27, isn't it? Now let's simplify this guy. So we have 12 root 3 and 12 root 3 positive, that is 24 root 3 minus 27 में 16 ऐड कर देंगे तो बच्चे 43 आएगा, तो माइनस 43 ओवर। अब यहाँ पे देखो 27 में से कितना माइनस हो रहा है, 16 माइनस हो रहा है, तो कितना आएगा 11, राइट। लेकिन माइनस 11 क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव नीचे नहीं हो सकता, इसको अगर ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब नेगेटिव हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाहर माइनस लगा दो तो 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11 विल बी योर आंसर। किसी को डाउट है तो पूछो भाई, ये तो एनसीईआरटी है, बड़ा आसान है। किसी पार्ट में डाउट है तो पूछ लो, रुके यहाँ तुम्हारे लिए। No, sir, no doubt. नो डाउट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे, ठीक है, फॉर एग्जाम, ठीक है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसको। चलो, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब मैंने आपको ट्रिक बता रही कि एक एनसीईआरटी, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोड का। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एंगल्स आपको समझा दिया मैंने, तो अगर एंगल्स आप लोग समझ गए हो तो जरा हम्म, ये वाला एंगल, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड थीटा इफ cos theta minus sin theta over cos theta plus sin theta is equal to 1 minus root 3 over 1 plus root 3। स्टैंडर्ड, बेसिक में भी आ सकता है, ठीक है, और बोर्ड का तो है। चलो कॉपी करो और करके दिखाओ मेरे को। कॉपी
हाँ भाई बच्चों, इस सेशन को फिर से ज्वाइन करो जरा, इट्स अबाउट टू एंड, ज्वाइन इट अगेन प्लीज।